तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर है। Prime Minister Modi there, who's inaugurating the ISKCON temple in Mumbai. He was visiting here where he's already present there, and he's going to be inaugurating the ISKCON temple. As we can see, he's also offering prayers there at the ISKCON temple, and he's incorporating the Sri Sri Radha Madan Mohanji temple on ISKCON initiative that is located in Kharghar in Navi Mumbai. It is spread across 9 acres. The temple complex includes several deities, a Vedic education center, a museum, auditorium, healing center. The project is aimed to spread peace, harmony, universal brotherhood, drawing teachings of the Vedas. Prime Minister Modi there inaugurating the Sri Sri Radha Madan Mohanji temple on the ISKCON initiative that is located in Kharghar, Navi Mumbai. This is the Prime Minister there, now seen in those images as he's inaugurating Asia's largest ISKCON temple. He's seen there with the other at the educational center, along with the pujaris offering prayers as the Prime Minister there is inaugurating this key ISKCON temple, the Asia's largest ISKCON temple. And the Prime Minister had reached here. He's also inaugurating this ISKCON temple after having been speaking to the Maharashtra legislatures. He's at the stadium. He's also inaugurating this, and the details of this, one of the world's biggest and most biggest temples. Prime Minister Modi is dedicating the Sri Sri Radha Madan Mohanji temple, an ISKCON project in Kharghar, Navi Mumbai. And the release is also stated to promote universal brotherhood and Vedic teachings. Prime Minister Modi in Mumbai today, there have been advisories that had been issued as the Prime Minister was there. He's taking a look at this 9 acre, it's spread over 9 acres. He's taking a look at the temple with its and the museum with all the pictures that are adorned on the walls. The Prime Minister there, he's also offering his prayers and has spoken to people at the temple. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And if you're wondering what the weather in your city is today, here's the weather update brought to you by Samsung Galaxy S24 Ultra, powered by Galaxy AI. काशी नगरी के संत श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन और विश्व के कोने कोने से आए हुए सभी संतों की तरफ से श्री श्री राधा मदन मोहन जी के इस प्रांगण में आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं महामहिम माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, आपका हार्दिक स्वागत है। माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, सांसद मथुरा उत्तर प्रदेश, और हमारे स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर, आपका हार्दिक स्वागत है। हम सभी का स्वागत करते हुए एक बार महामंत्र का उद्घोष करेंगे। सब लोग एक साथ बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं पूज्य सूरदास प्रभु जी को आमंत्रण करूंगा कि वे आकर यहां वेलकम करें हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का।
हिज ग्रेस सूरदास प्रभु जी, जो हमारे इस मंदिर के अध्यक्ष हैं, जिनके मार्गदर्शन में इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ है। पूज्य सूरदास प्रभु जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत करते हुए, उन्हें शाल अर्पण करते हुए श्री राधा मदन मोहन जी की तरफ से नरसिंह कवच प्रदान करते हुए और श्री राधा मदन मोहन जी की तरफ से एक छोटी सी भेंट। बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। भगवान का प्रसाद हमारे स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर श्रीमती हेमा मालिनी जी की तरफ से श्री राधा मदन मोहन जी का प्रसाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूज्य सूरदास प्रभु जी को आमंत्रित करूंगा कि वे सबका यहां पर स्वागत करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन। And viewers, as we come to the end of this news wheel, let's record and summarize with Note Assist using Galaxy AI on Samsung Galaxy Z Fold 6. Meta India on Wednesday has apologized for CEO Mark Zuckerberg's remarks during a podcast that incumbent government in India lost power in the 2024 elections and termed it as an inadvertent error. Taking to X, Meta India's Vice President Shivnath Thukral has written, "Dear Honorable Minister Ashwini Vaishnav, Mark's observation that many incumbent parties were not re-elected in 2024 election holds true for several countries but not India. We would like to apologize for this inadvertent error. India remains an incredibly important country for Meta, and we look forward to being at the heart of its innovative future." There you have it, the precise reading of the news in a simpler format using Galaxy AI on Samsung Galaxy Z Fold 6. We'll be back with the headlines in a few minutes. श्रील प्रभुपाद स्वामी का आशीर्वाद है। मैं सभी पूज्य संतों का आभार करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं अभी देख रहा था श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर परिषद की जो रूपरेखा है, इस मंदिर के पीछे जो विचार है, इसका जो स्वरूप है, उसमें अध्यात्म और ज्ञान की संपूर्ण परंपरा के दर्शन होते हैं। मंदिर में ईश्वर के विविध स्वरूपों के दर्शन होते हैं, जो एको अहम बहुश्याम, ये हमारे विचार को भी अभिव्यक्त करते हैं। नई पीढ़ी की रुचि और आकर्षण के अनुरूप यहां रामायण, महाभारत, उसको समेटे हुए, उस पर आधारित
म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। यहां वृंदावन के 12 जंगलों पर आधारित एक उद्यान भी विकसित किया गया है। मुझे विश्वास है ये मंदिर परिसर आस्था के साथ साथ भारत की चेतना को भी समृद्ध करने का एक पुण्य केंद्र बनेगा। मैं इस पुनीत कार्य के लिए इस्कॉन के सभी संतों और सदस्यों को और महाराष्ट्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज इस मौके पर मुझे परम श्रद्धेय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भावुक स्मरण भी हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में उनका विजन जुड़ा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अगाध भक्ति का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। आज वो भौतिक शरीर से भले ही यहां न हो, लेकिन उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति हम सब महसूस कर रहे हैं। मेरे जीवन में तो उनके स्नेह का, उनकी स्मृतियां का एक अलग ही स्थान है। उन्होंने जब विश्व की सबसे बड़ी गीता का लोकार्पण करवाया तो उसके लिए मुझे आमंत्रित किया और मुझे भी वो पुण्य प्रसाद मिला। श्रील प्रभुपाद जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर भी मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ था। मुझे संतोष है कि आज मैं उनके एक और सपने को पूरा होते देख रहा हूं, उसका साक्षी बन रहा हूं। साथियों, दुनिया भर में फैले इस्कॉन के अनुयायी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के डोर से बंधे हैं। उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट रखने वाला एक और सूत्र है जो 24 घंटे हर भक्त को दिशा दिखाता रहता है। ये श्रील प्रभुपाद स्वामी के विचारों का सूत्र। उन्होंने उस समय वेद, वेदांत और गीता के महत्व को आगे बढ़ाया जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था। उन्होंने भक्ति वेदांत को जन सामान्य की चेतना से जोड़ने का अनुष्ठान किया। 70 वर्ष की आयु में जब लोग अपने कर्तव्यों को पूरा मान चुके होते हैं, उस समय उन्होंने इस्कॉन जैसा मिशन शुरू किया। इसके बाद उन्होंने लगातार दुनिया भर का भ्रमण किया, श्री कृष्ण के संदेश को दुनिया के कोने कोने में ले गए। आज दुनिया के हर कोने में करोड़ों लोगों को उनकी तपस्या का प्रसाद मिल रहा है।
श्रील प्रभुपाद स्वामी की सक्रियता, उनके प्रयास आज भी हमें प्रेरित करते हैं। साथियों, हमारा भारत एक असाधारण और अद्भुत भूमि है। भारत केवल भौगोलिक सीमाओं में बंधा भूमि का एक टुकड़ा मात्र नहीं है। भारत एक जीवंत धरती है, एक जीवन संस्कृति है, जीवन परंपरा है, और इस संस्कृति की चेतना है यहां का अध्यात्म। इसलिए यदि भारत को समझना है तो हमें पहले आध्यात्म को आत्मसात करना होता है। जो लोग दुनिया को केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं, उन्हें भारत भी अलग अलग भाषा और प्रांतों का समूह नजर आता है। लेकिन जब आप इस सांस्कृतिक चेतना से अपनी आत्मा को जोड़ते हैं, तब आपको भारत के विराट रूप के दर्शन होते हैं। तब आप देख पाते हैं सुदूर पूरब में बंगाल की धरती पर चैतन्य महाप्रभु जैसे संत अवतरित होते हैं। पश्चिम में महाराष्ट्र में संत नामदेव, तुकाराम और ज्ञानदेव जैसे संतों का अवतरण होता है। चैतन्य महाप्रभु ने महावाक्य मंत्र जन जन तक पहुंचाया। महाराष्ट्र के संतों ने राम कृष्ण हरि के मंत्र से आध्यात्मिक अमृत बांटा। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी गीता के जरिए भगवान कृष्ण के गुण ज्ञान को जनसुलभ बनाया। इसी तरह श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के माध्यम से गीता को लोकप्रिय बनाया। गीता की टीकाएं प्रकाशित कर उसकी भावना से लोगों को जोड़ा। अलग अलग स्थानों पर जन्मे ये सभी संत अपने अपने तरीके से कृष्ण भक्ति की धारा को गति देते रहे हैं। इन संतों के जन्म काल में वर्षों का अंतर है, अलग अलग भाषा, अलग अलग पद्धति है, लेकिन बोध एक है, विचार एक है, चेतना एक है। सभी ने भक्ति के प्रकाश से समाज में नए प्राण फूके, उसे नई दिशा दी, अविरत ऊर्जा दी। साथियों, आप सभी परिचित हैं, हमारी आध्यात्मिक संस्कृति की नींव का प्रमुख आधार सेवा भाव है। आध्यात्मिकता में जनार्दन सेवा और जन सेवा एक हो जाते हैं। हमारी आध्यात्मिक संस्कृति साधकों को समाज से जोड़ती है, उनमें करुणा की भावना पैदा करती है। ये भक्ति भाव उन्हें सेवा भाव की ओर ले जाता है। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद
तद्दानम सात्विकम स्मृतम। श्री कृष्ण ने हमें इस श्लोक में सच्ची सेवा का मतलब बताया है। उन्होंने बृहद सुंदर तरीके से समझाया है कि सच्ची सेवा वही है जिसमें आपका कोई स्वार्थ ना हो। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के मूल में भी सेवा भावना है। इस्कॉन जैसी इतनी विराट संस्था भी इसी सेवा भावना से काम करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े कितने ही काम आपके प्रयास से होते हैं। कुंभ में इस्कॉन सेवा के कई बड़े कार्य कर रहा है। साथियों, मुझे संतोष है कि हमारी सरकार भी इसी सेवा भावना के साथ पूरे समर्पण से लगातार देशवासियों के हित में काम कर रही है। हर घर में शौचालय बनवाना, हर गरीब महिला को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन देना, हर घर तक नल से जल की सुविधा पहुंचाना, हर गरीब को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देना, 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को इस सुविधा के दायरे में लाना, हर बेघर को पक्के घर देना, ये इसी सेवा भावना के साथ, इसी समर्पण भाव के साथ किए गए कार्य हैं जो मेरे लिए हमारी महान सांस्कृतिक परंपरा का प्रसाद है। सेवा की यही भावना सच्चा सामाजिक न्याय लाती है, सच्चे सेक्युलरिज्म का प्रतीक है। साथियों, हमारी सरकार कृष्ण सर्किल के माध्यम से देश के अलग अलग तीर्थों, धार्मिक स्थानों को जोड़ रही है। इस सर्किट का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा तक है। स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के द्वारा इन स्थानों को विकसित किया जा रहा है। इन मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग रूपों के दर्शन होते हैं। कहीं वो बाल रूप में दिखते हैं तो कहीं उनके साथ राधा रानी की भी पूजा होती है। किसी मंदिर में उनका कर्मयोगी स्वरूप दिखाई देता है तो कहीं राजा के रूप में उनकी पूजा की जाती है। हमारा प्रयास है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े अलग अलग स्थलों तक पहुंचना और मंदिरों के दर्शन करना आसान हो।